तो आज एक तो दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी completely C. elegans, life history, and about extracellular matrix. Okay. Yes, sir. So let us start, है ना, without any delay. तो कल टेस्ट के लिए तैयार हो ना, है ना? टेस्ट के लिए तैयार हो सारे? ऑल आर रेडी? टेस्ट सारे एक साथ दिया करो, हाँ, एक साथ दिया करो, मतलब जो भी है। जैसे पहले मैं देखो एक हैबिट में आपने चेंज देखा होगा, पहले मैं 8, 8:30, 9 बजे तक शिफ्ट करता था क्लासेस, है ना? अभी मैंने एकदम स्टिक कर दिया है, ठीक है ना, चाहे जो हो जाए 8 बजे क्लास लेना। कभी कभी लाइफ में ना खुद के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड द विनिंग एटीट्यूड, है ना? समझ गए? यस सर। विनिंग एटीट्यूड। तो अभी कुछ है नहीं खास उसमें, पहले माइंड में सोचो कल का टॉपिक क्या है ना? कल का टेस्ट का टॉपिक क्या है? एबीसी फ्लावरिंग, है ना? एबीसी फ्लावरिंग है ना? मॉर्फोजेनेसिस, प्लांट मॉर्फोजेनेसिस, एनिमल मॉर्फोजेनेसिस, यही तो है। देखो मेलेनोसाइट वाला भी मैंने बना दिया, ये वाला भी बन गया, हाँ, सप्रेसर कांस्टेंट, है ना? यही आपको जीन बेसिकली देखनी है, बाकी तो आपको याद ही है, ठीक है ना? ऑर्गेनेटी जीन कौन सी है, उनका एफएलटी लोकस कैसे है ना? तो सारा ही देखना है आपको, जो बताया, ठीक है ना? पहले माइंड में सोचा जाए, हमेशा प्लान करने का तरीका मैं बताता हूँ। मुझे लगता है तुम लोग प्लान करने नहीं आता, तुम लोग बहुत जंबल वे में चलते हो। कैसे करते हैं? जैसे पहले टारगेट को गोल करते हैं कि क्या है, ठीक है? जैसे मान लो एबीसी ऑफ फ्लावरिंग है टॉपिक, है ना, कल के टेस्ट का, राइट? यस सर। तो एक बिना बुक खोले, जैसे बुक खोलोगे सारा ज्ञान चला जाएगा, ऑल द नॉलेज विल वेनिश as soon as you will open the book. Am I right? शिवानी, रवीना and Ritika? As soon as you are opening the book, everything will go on, whatever you learn. What is the right practice to learn? Tell me. शिवानी, Ritika, Riti. सहाना नहीं आई, सहाना को इन्फॉर्म कर दो। Yes, sir. Informed her. She might, like, I don't know whether she'll join or not today. Okay, no problem. I have informed in the group. Already informed in the group. हाँ, sir. Okay. Requesting all to join. So I'm telling you the key to success, na? Because your success is my success. Na? If you are failing, I am failing. So I think I should tell you my key of success first, and then everything, right? So let us start. So what is the key factor of the success? Tell me first. You will tell me, then I will tell you. And tomorrow is the webinar. You can attend. No? Tomorrow is the webinar at 12 p.m. to 1 p.m. Right? Mega webinar about CSIR planner. So every time you should listen this. Every time, all of you, because I think I don't know from where something key element is coming out of the that time. So because of I think students' questions, a lot of students are asking a lot of good. Tell me first one by one. Lokesh, tell me about yourself. What do you think? What is the key to success? सर एक ही चीज है सर, करत करत अभ्यास में जड़मति हो तो सुजान, अगर श्री आवत जात। No, वो तो है ही है कि you have to practice, right? Practice and practice, right? Only key to success is the practice. Now tell me, Preeti, what do you think? What is your funda of key to success? Constantly practice. हाँ जी? So constantly. हाँ, तो practice तो constantly practice. Anything else you want to add besides practice? Well, practice has no dimension, huh?
It can be such huge practice. So you need large amount of time. है ना? Sometimes you don't have time, then you have less time to practice. Then what you will do? Sir, completely focused. First thing, very important point. First, focus. Focus means prepare your mind for and accept the challenges. Prepare your mind and accept challenges. Defeat is from the mind. Okay. So if you और जो accept उनका the, distraction है, I am telling you, I am coming to that point. First, focus means prepare your mind and accept the challenges that I have to face the problem. Right? Accepting is very difficult. I have seen that most of the people lose the fight because they already accepted their defeat. है ना? This time I am not able to qualify. है ना? I have not prepared. A lot of excuses are there already in the mind. Am I right? Shivani, Ravina? Yes, sir. So don't accept the challenge that you cannot do that. Always till last moment accept that I will be the winner, and whatever the gap is there, because you feel the gap, that's why you are not able to accept the challenge. Okay, so gap means gap in practice, gap in concept, है ना? So that is not a gap, that is a actual goal. Okay, that is actually that is a goal, gap, है ना? So if I'm losing time, that's what you are saying, Preeti, distraction. Losing sir. time every day gives you frustration. Am I right? Yes, sir. yes, Yes, sir. That converted into the frustration. Losing time every day. सर यही चीज सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कुछ पर्सनल बात कर सकती हूँ. Sure. This is the open platform, right? Because student, if are asking question and finding the right solution, I think their speed will be double. So that's why. यही चीज तो इस चीज को कैसे मैं ओवरकम करूँ. मुझे मतलब मेरे अंदर पेशेंस बहुत ही कम है, और ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ या प्रैक्टिस नहीं करती हूँ. I was feeling same. आता है. Yes, I was feeling same about you and other student also. So मैंने इस पे इसीलिए आज ये ओपन किया. प्लीज. पर मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी मतलब निगेटिविटी बहुत ज्यादा है मेरे अंदर, और बहुत मैं स्ट्रेस भी फील करती थी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा इस तरह. हाँ, ये मैं कह रहा हूँ. स्ट्रेस जब मैं पढ़ती उड़ती हूँ तो मैं बहुत. Yes, sir. Stress is because of gap. This gap you want to fill, but जल्दी से भरना चाहती हो, लेकिन ये distraction में टाइम बहुत ले रहा है ना, तो that's why a lot of frustration is generated. Okay, so you want solution for that, right? Yes, sir. So this is because you feel you have very less time. This is because of feeling that you have very less time. है ना? You are consuming all the times in all the activity except your studies. है ना? So suppose you are devoting 12 hours per day, and your 8 hours gone in all the household activities. Okay, so only 4 hours left for you, है ना? Either you go for the study or you can take the rest. Am I right? Yes, sir. है ना? How many of you feel that this is the same thing happening to all of you? Same thing happening to you. Niritika, share your views. Yes, sir. Like very less time to study. You're right. So और सर मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मतलब इसका भी आप डिस्कस करिए सर कि पेशेंस नहीं है. मतलब हाँ, उसका बता. मैं सोचती हूँ ये भी कवर कर लूँ, ये भी कवर कर लूँ, कहीं छूट ना जाए,
इस तरह का भी हाँ। चीजें माइंड में आ रहा है। हाँ, एक साथ आता है एंड यू वांट टू कवर ऑल दैट, और बाद में आधे घंटे में वो फ्रस्ट्रेट कर देता और सर जब मैं क्वेश्चन करती हूँ ना तो फिर उस टाइम एकदम होच पोच हो जाता है पूरा, क्या है क्या नहीं। और जब बाद में टेस्ट खत्म हो जाए या कुछ उसका सोल्यूशन देखूंगी तब तो ओहो ये तो कितना आसान था, ये क्यों नहीं कर पाई, फिर हाँ। और बुरा लगता है। हाँ। मतलब इस तरह का बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि है। बस इस पे फोकस करो, प्रॉब्लम इज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम इज और ऑफ। क्वेश्चन भी मैं अच्छे से पढ़ती हूँ लेकिन फिर भी वो चीज मुझे नजर नहीं आता, लेकिन जब टेस्ट खत्म हो जाता है तब मुझे समझ, तब मैं क्वेश्चन को देखती हूँ। तो इसका मतलब कि चीजें मेरा कहीं और भी माइंड चलता है हाँ, ड्यूरिंग ये एग्जाम के यस टाइम डिस्ट्रक्शन, हाँ, दैट्स। ये जो मेरा एग्जाम के टाइम में जो मैं क्वेश्चन रीड करने के टाइम में जो मेरा जहाँ दिमाग जाता है वो मुझे नहीं पता कहाँ जाता है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा फील होता है कहीं और जा रहा है, मेरे फोकस नहीं हो, तो वो चीज कैसा हो रहा है, मतलब मेरे साथ ये बहुत गड़बड़ हो रहा है सर। नहीं नहीं, इसका सोल्यूशन एकदम मेरे पास है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट उठाया है। दैट्स व्हाई ए गुरु इज द परफेक्ट, है ना, एलिमेंट टू identify those, because I have to convert your all these things into the success, because we all are human beings, है ना। we as a student I have faced all that things in previous time, my, है ना। so now I'm teacher, so I'm myself every day I'm practicing this, now I'm able to deal with all that, that's why I'm a guru. So now I should, that's why I thought I should discuss, मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करना चाहिए. So can I speak in mix Hindi and English both? हाँ यस सर, यस सर, Yes, sir, yes, रवीना, नो प्रॉब्लम ना. चलो, परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट. हम एक अपनी एक स्टोरी सुनाते हैं आपको, शायद आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा. सो आई हैव व्हाट आई एम करंटली हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ओके, फर्स्ट priority, and then teaching to 120 students, okay, and I have to frame their main paper and I have to evaluate their class work, okay, and then MST is there, now final exam is coming, okay, and now admission in charge also, head of the department means you can see all the responsibility, all the admin responsibility. So this is my the livelihood, okay. Except that now my second role is a CSIR teacher, right? So Yes. here also I have the responsibility of research, because my research paper are very good, so I have got invitation of writing at least 4 to 6 research papers. So I am getting no help from anyone, right? So I have to write, because this is a commitment. This is called as commitment, and this is also a commitment. And I have to start. I have the same 12 hours. मुझे मेरे पास भी वही 12 घंटे, ठीक है. तो अब मुझे ये सारा काम करना है, ठीक है. एक दिन का बता रहा हूँ, सिर्फ 1 डे का कैलकुलेशन बता रहा हूँ. सीएसआईआर मुझे पढ़ाना है, ये मेरा पैशन है, ठीक है. मेरा कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट है स्टूडेंट्स के लिए. आई एम वेरी कमिटेड, बिकॉज देयर लाइफ, देयर सक्सेस इज टोटली डिपेंड्स ऑन मी. 1 मिनट की मेरी गलती, है ना, आपकी लाइफ खराब कर सकती है. सो आई एम टोटली 100% कमिटेड हियर, ओके. अब कमिटमेंट का गैप देखो, मेरी लेक्चर है 8 PM पे, ठीक है. 8 PM पे मेरा लेक्चर है. सो समटाइम इट हैपेंस कि मेरी लेक्चर 11 बजे तक हो रहा है, 10 बजे तक हो रहा है. तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप लुढ़क जाओगे तुरंत बिस्तर में जाते ही. इट विल टेक टाइम, है ना. सोने में आपको बोलते रहो, हाँ ना करते रहो, डिस्कस करते रहो, और कुछ प्रॉब्लम है तो बताते भी रहो. अभी 11 बज जाता है, मैं कभी कभी जाता हूँ सोने 12 PM तक, ठीक है, 12 PM तक. अब मुझे यहाँ कितने बजे उठना चाहिए बताओ? मेरा अलार्म 4 AM का है, ठीक है. 4 AM का अलार्म है, क्योंकि मेरा जो ये 12 to 4 मतलब 4 आवर्स मेरी स्लीप है. बट दिस इज नॉट ट्रू. मैं दिन में मैंने कमिटमेंट किया मुझे 8 घंटे सोना ही है, तो 4 घंटे मैं यहाँ से निकालता हूँ सोने के लिए,
और बीच में 4 घंटे मैं दिन में निकालता हूँ। कैसे टाइम मैनेजमेंट करना मुझे 4 बजे से जो 6 बजे तक का टाइम है वो मैं देता हूं कहां पे, प्लानिंग में। सुबह उठा, कल का लेक्चर पढ़ाया था, प्लान किया, क्योंकि ये प्लानिंग अगर नहीं करूंगा, द डे फर्स्ट आई शुड प्लान, अगर प्लानिंग नहीं करूंगा तो ये मेरे जो टाइम बचे हैं ना, करो अभी घंटे ग्रैब कर लो 7 AM से 7 PM तक, मतलब 12 घंटे का जो टाइम है पूरा खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर मैंने प्लानिंग में गड़बड़ की तो सारे काम में क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें आपका कमिटमेंट में आता है एमसीक्यूज भी बनाना ना, बढ़िया क्वेश्चन बनाने, मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट इज की टू सक्सेस। चैप्टर को भी डेप्थ देना है ना, प्रॉपर चैप्टर को बैलेंस करना है, बहुत डेप्थ में जाके स्टडी करना है, बुक्स भी स्टडी करनी है। ठीक है, लास्ट 10 years के क्वेश्चन भी स्टडी करने हैं। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अभी प्लानिंग 2 घंटे में नहीं करता हूँ मैं, 5 AM तक कर लेता हूँ। जैसे मेरी सबसे पैशनेट, सबसे मोस्ट अर्जेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बता सकते हो? CSIR। ठीक है, इसमें तो मैं चलो 1-2 दिन का गाइड देके 120 बच्चे हैं तो मैंने अभी 20 दिन का इनको टाइम, 20 दिन में कैलकुलेशन करनी है इनकी, तो मैंने सोचा है कि 10 कॉपी पर डे में चेक करूंगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, 10 कॉपी मतलब 12 से 1 बजे का PM का टाइम मैंने माइंड में सोच रखा है कि ये देना। मैं संडे कल मंडे से स्टार्ट कर दूंगा। तो अब इनका बैलेंस मैं कैसे बनाना, पहले मोस्ट अर्जेंट टास्क क्लासिफाई, तुम्हारी लाइफ में मोस्ट अर्जेंट टास्क क्या है बोलो, ऐसे पेपर पे लिखो तुम, या अभी अगर लिख सकते हो तो लिखो, मेरे साथ ही सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, चलो अच्छा देख लो पहले, हाँ देख लो। मोस्ट अर्जेंट टास्क है CSIR। अब CSIR में एवरी डे आई एम फेसिंग द चैलेंज, एवरी डे, बिकॉज आई हैव नो सोल्यूशन, आई एम नॉट ए काइंड ऑफ वेदा ऋषि, है ना, एवरीथिंग, आई एम नॉट लोडिस, आई एम नॉट अल्बर्ट्स, आई एम नॉट गिलबर्ट्स। ओके, तो मुझे सबको पढ़ना है, सबको देखना है, सारे डायग्राम्स देखने हैं, सब कुछ करना है। मैं सोचता हूँ कि जैसे पहले तो काम ये है कि भाई सबसे बेस्ट मटेरियल कहाँ है। जैसे आज मैंने ECM पढ़ाना था, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि जब मार्फोजेनेसिस पे कल एंड किया था मैंने, मार्फोजेनेसिस पे एंड किया था थोड़ा सा ना, यस मार्फोजेनेसिस टोटली लिंक्ड है ECM से, क्योंकि जब आप वो डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं, मूवमेंट, सेल मूवमेंट करते हैं, तो एवरीथिंग इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तो सारा मूवमेंट चलता रहता है सेल का। इसमें ECM का बहुत बड़ा रोल है। ECM कई जगह है, कैंसर में है ECM, बहुत जगह है। ठीक है ना, ECM बहुत सारी जगह है। अब मैंने सोचा अब ECM मेरे पास सिर्फ ये 8 से 10 बजे तक का टाइम है। अगर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया तो देन हुज लाइफ विल बी इन द रिस्क, आपकी लाइफ रिस्क में होगी, मुझे भी सक्सेस नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये पार्ट हमारा जाता है प्लानिंग में कि पहले मुझे बुक कौन सी पढ़नी है। बुक तो बहुत सारा है, मटेरियल बहुत सारा है, ठीक है ना, और मुझे लिंक चाहिए होता है। एक्चुअल में मैं अपने ब्रेन को ट्रेन करता हूँ, लिंक प्लस लिंक, एक दूसरे से लिंक होना चाहिए ना। व्हाई आई एम स्टडिंग दिस शुड बी लिंक टू द सिलेबस। अब मैंने पहला काम क्या किया दिखाता हूँ। मैंने पहला काम किया, इसका सिलेबस तैयार किया। ठीक है, ये सिलेबस मेरे सामने, दिस इज माय बोर्ड, व्हाट यू कैन से, दिस इज माय बोर्ड। जो मुझे 8 बजे लेक्चर देना है, क्योंकि ये लेक्चर ही बच्चों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, लाइफ एंड सक्सेस टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ लेक्चर। आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हाउ आई एम स्टार्टिंग माई डे, हाउ आई एम रिड्यूसिंग माई स्ट्रेस। तो अब देखो, अगर मान लो मैं ये ना सेलेक्ट करूं, सपोज मैंने CSIR को मैं ठीक 6 बजे ये प्लान करूं शाम को, सुबह प्लान ना करूं, देन व्हाट विल हैपन,
टेल मी, बस आप बता दो मुझे इसका आंसर, आपको खुद का आंसर मिल जाएगा। अगर मैं सुबह 4 बजे ना करूं, सुबह 4 बजे करने से क्या फायदा है, और अगर मैं शाम को ये 6 बजे करूं तब भी मेरे पास 2 घंटे हैं, है ना, कर सकता हूँ ना 2 घंटे में आराम से तैयारी। मुझे क्या है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो पता ही है सारा। तो मैं सुबह 4 बजे क्यों प्लानिंग कर रहा हूँ? चलिए, टू रिड्यूस द गैप स्ट्रेस, क्योंकि अगर मान लो 6 बजे किसी को बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई, ठीक है, या कोई बहुत ही अर्जेंट वर्क आ गया, ठीक है, या लाइट मिस्टेक हो गई, चली गई, या नेट चला गया, या कोई ऐसी चीज हो गई इस 2 घंटे के बीच में, तो 8 बजे मेरे पास क्या होगा ये बताओ। व्हाट विल द फीलिंग इन माय इनसाइड, मैं आपको तो बोल भी नहीं सकता, है ना, मुझे तो लेक्चर लेना है, बिकॉज देयर इज 30 मिनट्स एंड 6 मिनट्स टाइम, है ना। बोलो, तो ये सोचा आपने, सबसे ज्यादा स्ट्रेस कौन दे रहा है? आपका जो अल्टीमेट मोस्ट अर्जेंट जो टास्क था वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है। जैसे जैसे वो टाइम गैप घटेगा, ठीक है ना, उतना स्ट्रेस का लेवल कितना होगा, हाई टू वेरी हाई। और 8 बजे अगर नहीं तैयार हुआ मेरा लेक्चर तो ये फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन, ऐसी फ्रस्ट्रेशन जो कन्वर्ट हो जाएगी डिप्रेशन में, ठीक है। और इस डिप्रेशन से निकलना इट्स अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, क्योंकि स्टूडेंट्स के सामने स्टूडेंट को मैसेज चला गया, क्या चला गया बिना कहे, बोलो, और वो मुझे भी चला आया, ठीक है, सर को कुछ नहीं आता। अब इसको ओवरकम मैं नहीं कर सकता जब तक कि मैं उससे बेस्ट प्लानिंग करके बेस्ट लेक्चर लूं। बात समझ रहे हो? यस सर। बोलते तो रहो तुम लोग, है ना। तो मेरा अल्टीमेट टास्क क्या है मेरी लाइफ का, क्योंकि देखो मैं आज छोटी हूं, है ना, प्राइवेट कॉलेज है, मेरा मन लगा तो मैं करूंगा, नहीं मन लगा नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोग से मेरा एक कमिटमेंट है लाइफ टाइम का। ये मेरा हाईएस्ट, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क होता है, दैट इज हाईएस्ट फ्रस्ट्रेशन भी देता है। तो मैंने क्या किया, टाइम ले लिया। टाइम ले लिया, कैसे ले लिया? अगर 4 से 5 में मुझे एक चीज मिल गई कि मुझे किस बुक से, विच बुक आई हैव टू फॉलो, ठीक। अब मेरे पास प्लानिंग करने के लिए बहुत इजी टास्क है कि व्हेन आई शुड स्टार्ट एंड व्हाट आई शुड स्टडी, ओके। तो अगर मैं मान लो अब मैं देखो अकेले रहता हूँ, नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है ना, एवरी टास्क इज असाइन्ड टू मी, मैं भी कर रहा हूँ सारा कुछ। तो मेरे पास क्या है, प्लान करके, जैसे किसी को फोन आया, है ना, किसी फ्रेंड्स का आ ही जाता है फोन, 10 बजे करीब आ जाता है ना, घर से फोन आ जाता है 9 बजे, ठीक है। तो मुझे टाइम पता है, तो मैं क्या करता हूँ, इस टाइम में मैं कुछ न कुछ काम कर रहा होता हूँ, घर पे खाना बनाता हूँ, सब्जी काट रहा होता हूँ, ठीक है, फोन पर बातें भी कर रहा होता हूँ। आई एम नॉट इंटरफियरिंग माई स्टडी। और जब मैं फ्री हूँ, ठीक है, तो मैं प्लानिंग कर रहा होता हूँ, ये सिलेबस देख देख के प्लानिंग कर रहा हूँ, यार ये है ना, इंटीग्रिन का क्या रोल है, न्यूरोट्रांसमीटर्स में कैसे, रेगुलेशन में कैसे, द होल डे आई एम ड्यूटी। अच्छा, अब बीच में हमने उनको भी टाइम दिया हुआ है अपने कॉलेज को, तो 4 बजे से 8 बजे तक हमने क्या किया, फुल टाइम बिना टेंशन के मैंने अपने गोल को दिया, ये ठीक है ना। ये 4 बजे से 8 बजे तक का टाइम है, 6 बजे तक का टाइम है, मैंने पूरे कंसंट्रेशन से दिया। अब जो पूरा दिन मेरा चलेगा बहुत स्लो चलेगा, बट up to 8 PM I will be completely ready। बात समझ रहे हो? तो जो टाइम गैप था उसको हमने लीवरेज कर दिया, मतलब काफी ज्यादा पहले प्लानिंग कर ली। हम देखो बीच में मैंने 12 से कॉपी भी चेक कर दिया है ना, और मेरी 10 बजे मीटिंग करीब होती है एडमिशन के रिगार्डिंग, वो भी अटेंड कर ली हमने।
जिस समय एडमिशन के रिगार्डिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उस समय हम अपना सब्जी काट रहे होते हैं, नाश्ता बना रहे होते हैं, ठीक है, वो भी इंटरफेयर नहीं किया। इसको बहुत कंसंट्रेट होकर करते हैं क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड मैटर है ना। तो ये भी टेंशन खत्म हो गई क्योंकि मैंने 10 कॉपी, 10 नहीं भी किया, 5 भी किया, तो 5 काउंट करके वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। मैंने एक साथ बंडल ऑफ लोड्स नहीं दिया अपने से, तो बिकॉज इट्स माई लाइफ, माई ब्रेन, है ना, आई हैव टू डू द जस्टिस फॉर माई सेल्फ। मुझे रेस्ट भी करना है, जैसे खाना खा लिया मैंने 10-11 बजे, मैंने खाना डेली खा ही लेता हूँ, मॉर्निंग का खाना, मतलब काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट एएम, है ना। तो मुझे नींद आ जाती है, मैं यहाँ पे अब कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं 12 बजे तक आराम से सो भी लिया, अलार्म लगा हुआ है, सब जगह अलार्म लगा हुआ है, आई एम टोटली कंट्रोल्ड बाय द अलार्म। 8 बजे क्लास लेनी मैं भूल जाऊं, 7:55 का अलार्म लगा, आपको ये ऑन कर देना है, जो जूम है, हर चीज अलार्म से होता है। 12 बजे तक मैं उठा, फिर ये कॉपी का अपना काम देखा, नहीं भी देखा तो मुझे याद है कि मैंने ये सोचा था ये काम, लेकिन मैंने किया है, नेक्स्ट डे मैं जरूर करूंगा, दूसरे दिन भी नहीं कर पाया। अच्छा, पेपर राइटिंग का बता रहा था, रिसर्च राइटिंग का, ये बहुत सारे आर्टिकल आए, मैं पिछले 4 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, नॉट दिस इज रॉन्ग, पिछले 1 हफ्ते से मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं 2 पेज लिख दूं, है ना, इस रिसर्च पेपर का, मैं नहीं लिख पाया। कल मैंने रात को बहुत स्ट्रांगली फाइट की अपने ब्रेन से, व्हाई आई एम नॉट सिटिंग, ठीक है। तो अब देखो प्लानिंग का पार्ट यहाँ हमारे बना है ना, कि कैसे प्लान करना है, पहले CSIR का प्लान किया, फिर रिसर्च पेपर का प्लान किया, ठीक है, पेपर का प्लान करके फिर मैं बैठा हूँ टोटल स्ट्रगल करते करते 2 PM पे, क्योंकि आज सैटरडे होता है, तो सैटरडे संडे मेरी बॉडी काम नहीं करती है, मेरा बॉडी माइंड सारा बिल्कुल अलग होता है, सैटरडे संडे टोटली रेस्ट में कन्वर्ट करता हूँ। लेकिन अभी 2 बजे से 6 बजे तक 4 घंटे में आराम से पेपर बैठ के शांति से लिख रहा था, क्योंकि ये मैंने पहले ही प्लान कर लिया था लेक्चर, ठीक है। और फिर जो 2 घंटे बचा तो उसमें भी मैंने लेक्चर प्लान किया। नाउ व्हाट यू विल से, अभी आपको आंसर मिला आपके क्वेश्चन का? प्रीति बताओ पहले, क्योंकि तुम्हारा ही सवाल था ये बड़ा सा, टेल मी। हाँ ये सर, पूरा आंसर मिल गया? आपको ना बहुत पहले से प्लान करना होता है, कोई टास्क लिया है, वेरी गुड, हाँ उसको प्लान बहुत पहले से करो, अटैक कब करना है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंटली चैलेंज क्या है, मेंटल चैलेंज है कि एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको अचानक से कोई नया काम ऐड हो गया, आपने प्लान कर रखा था कि हमने तो पढ़ाई करनी थी, कल टेस्ट है ना, आपका पूरा खत्म हो गया, मतलब न उधर स्पीड बन रही है टेम्पो, ना इधर बन रही है, ठीक है। हाँ, ये साहब फिर बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आ रहा है अंदर, वो इसलिए कि अब सैटरडे के जो टेस्ट हैं वो मंडे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर, और ऑब्वियसली जो लेक्चर चल रहे हैं, अब देखो एक बड़ा अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ जो मेरे माइंड में है। ये सर, मान लो आज मैंने लेक्चर लिया, टॉपिक है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और लाइफ साइकिल ऑफ सी एलिगेंस, ये मेरा आज का गोल है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इसमें कोई भी CSIR का एग्जाम है तो 100% अच्छा, गुड परफॉर्मेंस, पॉजिटिव परफॉर्मेंस देके आए, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये चैप्टर याद होना चाहिए, मुझे भी एज ए स्टूडेंट, आपको भी याद होना चाहिए, राइट। तो पहले तो सारे लोग पहले प्रैक्टिस करो टाइम मैनेजमेंट का, आई डोंट नो हाउ यू विल मैनेज इट, है ना, बट ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, फ्रैगमेंट में सो, ऐसा नहीं कि 8 घंटे सो रहे हो तो फिर वो कुंभकर्ण की तरह सोए जा रहे हो, फिर उठे ही नहीं रहे हो, है ना। खाना कम खाओ और चीजों को बहुत रिलैक्स होके करो, परफेक्ट टाइम देके करो। एंड आपको एक बात बता दूं, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जो भी हो, सर सॉरी टू हाँ, सर, हाँ, और दूसरी बात ना कि जो क्वेश्चन जैसे है वो मैं बहुत ज्यादा गलत हो जाता है मुझसे, हाँ, वो निगेटिव हाँ, वाला ज्यादा हो जाता है, उसका बता रहा था। और फिर जैसे होता है ना कि जैसे 4 ऑप्शन में से मुझे 2 ऑप्शन तो चलो कंप्लीटली समझ आ गई, ये तो हो ही नहीं सकता,
और 2 ऑप्शन में से ऐसा लगे शायद ये हो शायद ये, और लेकिन फिर मन तो ऐसा करता नहीं करूंगी, लेकिन फिर मेरा मन ऐसा करता ना कि मैं कर देती हूँ, मैं ये क्वेश्चन करके जाती हूँ और देखिए गलत हो गया। हाँ तो अब वो देखो, फिर मैं कैसे कहूँ मुझे हाँ नहीं करना बता है ये बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमने ये मुझसे हो ही नहीं पाता है, हमने और मैं मान वो लो, करके आ जाती हूँ क्वेश्चन, मुझसे रहा नहीं जाता है सर। हाँ ठीक है। अब इसका वही प्रैक्टिस जो बात कर रहे थे ना, इसमें जो लैक ऑफ प्रैक्टिस जो हो जाती है ना, रिवीजन, प्रैक्टिस मतलब रिवीजन। अगर आपको प्रॉपर रिवीजन नहीं है, राइट, तो आपके ये एनालिसिस रॉन्ग होगा, और एनालिसिस अगर रॉन्ग होगी तो आंसर भी रॉन्ग लगेगा, क्योंकि उस समय आपको वो डेटा नहीं मिल रहा है जो एग्जैक्टली यहाँ पे वो करेक्ट करने में आपको हेल्प करे। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो, अब डोंट माइंड, मैं जो भी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, मान लो हम सभी लोग हाउस होल्ड वर्क में बहुत ज्यादा इंटेंगल्ड होते हैं, है ना। मान लो मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर सुनना होता है, रिसर्च का कोई भी चीज सुननी होती है यूट्यूब पे, मैंने कान में ईयरफोन लगाया, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स और वॉशिंग ऑफ डिशेस, ठीक है। तो ये मैं टाइम यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार तो मैंने लेक्चर सुना था इस पे, ठीक है, एक बार मतलब ये लाइव लेक्चर, एक बार रिकॉर्डिंग सुन ली, ठीक है, और जैसे ये लाइव लेक्चर एंड हुआ, आप लोग पता नहीं क्या करते, मुझे नहीं पता, मैं क्या करता हूँ फटाफट बुक पहले खोलता हूँ, जो स्टैंडर्ड बुक है, सोता नहीं हूँ, ठीक है ना, या इमीडिएटली कुछ काम करके मैं लौट आता हूँ बुक की तरफ। क्यों? बुक में मुझे वो देखना होता है कि मुझे जो टारगेट किया था उसमें से बुक में कोई नई इंफॉर्मेशन तो नहीं रहेगी जो छूट गई हो, ठीक है, जो मुझे देनी चाहिए थी, राइट। और वो बच्चे, क्योंकि वो लेक्चर तो बढ़ता जाता है ना, लेक्चर तो अगले दिन चला जाता है, तो आप लोग भी यही प्रैक्टिस करो। जैसे लेक्चर ओवर होता है, लेक्चर पहले अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो मैं बिल्कुल समझ नहीं आएगी सर आज टॉपिक क्या है, ईसीएम मतलब क्या, लाइफ साइकिल थियरी क्या है, कौन सी डेप्थ में जाना है, कुछ नहीं पता। हमने आपको क्या किया, लेक्चर की एक डेप्थ दे दी, है ना, एडवांस में A to Z दे दी, समझ रहे हो बात को। हमने आपके ब्रेन का एक दायरा बढ़ा दिया। आपको क्या करना है, आपको बुक में फटाफट वो चीजें सर्च कर लो कि कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये पॉइंट कहाँ पे, मार्क, सिर्फ मार्क करना, नथिंग टू रीड सीरियसली। अब यहाँ पे मार्क कर लिया, मार्क करने का फायदा क्या हुआ कि जब अब आपके माइंड में एक मैप बन गया है, एक यहाँ का मैप बना जो कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं, और दोबारा देख लिया, सेकंड टाइम हो गया, और थर्ड टाइम बिफोर द टेस्ट। तो अब टेस्ट का जो मैं टारगेट देता हूं इसीलिए कि कम से कम आप 3 टाइम्स अपने आप को टाइम दे उसी टॉपिक पे, एनी हाउ 3 टाइम्स रिविजन करना ही है। पहले लेक्चर के बाद तुरंत बाद बुक को मार्क कर लो, सेकेंड टाइम जब एक बार लेक्चर अपलोड होती है, ट्राई टू लिसन दैट, या पीपीटी अपलोड है वो फटाफट देख लो, अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो पॉइंट्स जो मोटे मोटे कीवर्ड होते हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया, जब जिस दिन टेस्ट था ना उस दिन का ये पर मैंने कंफ्यूजन, मतलब ये हमें पता लग गया कि टेस्ट के टाइम भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमेशा रॉन्ग लग जा रहा है, ठीक है ना। रॉन्ग इसलिए लग रहा है कि बिकॉज जो हमें बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट या नॉलेज चाहिए थी वो मिसिंग हो गई, है ना, मिसिंग हो गई। कोई भी सिग्नल ट्रांसलेशन पाथवे, पूरा पाथवे आपको चाहिए, है ना, एक भी कॉन्सेप्ट गया तो खराब हो गया, है ना, बात समझ रहे हो। कोई डायग्राम है वो आपको मिस नहीं होनी चाहिए, राइट। अब जैसे हमने पूछा स्पेमन न्यूको सेंटर क्या है, इसका क्या फंक्शन है, ठीक है, स्पेमन ऑर्गेनाइजर क्या है ना, स्पेमेंस। तो इस पे आपको जो डेटा दिया गया है वो तो पहले आपको बिल्कुल लूज नहीं करना है, बिकॉज, है ना, कोई भी डेटा अगर हम दे रहे हैं नॉट टू लूज एनीथिंग। आपको पहले तो वो स्लाइड याद होनी चाहिए, नोट्स याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा मेमोरी मैप बनाना सीखो, मेमोरी मैप, है ना, एंड फिल द गैप, ये फार्मूला याद रखिए, मेमोरी मैप बनाओ और जो भी गैप है उसको हटाओ। प्रीति, Shivani, you are not sharing anything?
रवीना, रवीना तुमने तो काफी अच्छा किया है टेस्ट वगैरह, कैन शेयर योर, क्योंकि तो सबको परफॉर्मेंस बढ़ाना है, 12 घंटे भी है ना सबके पास ही, तो कुछ है प्रैक्टिस चीजें जिसको आप मैनेज करके यू कैन। हाँ बताओ प्रीति। अपने थॉट शेयर करो बेटे, क्योंकि ये रोज रोज डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है ना, अब आज टाइम दिया है तो यूटिलाइज दैट टाइम। ये सर वही चीज जो मैं आपसे बता रही थी ना कि मेरे बहुत ज्यादा मेरे क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं। उसका कारण ये है ना कि उसका कारण है रिवीजन, रिवीजन में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। कैसे, जैसे एक बार तो टीचर ने पढ़ा दिया, आपका इंटरेस्ट उसके पहले तो नहीं आएगा, है ना। जैसे ईसीएम मैंने नहीं पढ़ाया, उसके पहले आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या है ईसीएम, ठीक है। लेकिन आप याद करो कि मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, आपने कितनी बार रिवाइज किया है, आप मुझे इसका करेक्ट आंसर दो। जिस दिन पढ़ाया उस दिन बहुत अच्छे से समझ में आया, उसके बाद आप धीरे धीरे परसेंटेज वो लूज होता चला गया, वो कॉन्सेप्ट आपको भूलता चला गया। और जब आपको टेस्ट पढ़ा तब आपको अचानक से वो याद नहीं आया, याद आया आधे घंटे बाद वो कॉन्सेप्ट, है ना। बात समझ रहे, ये है इसको कि जो फेवरेट चीजें वो प्लान करके करो। जैसे अब लेक्चर खत्म हुआ, पूरा समझ में आया, तो एक मैंने हैबिट बना लिया, हमने कहा पढ़ा तो जाएगा नहीं, तो चलो बुक ही पलट लेंगे, है ना, कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट था, कौन कौन से फिगर्स थे, है ना, कोई केस स्टडी तो नहीं था, कोई न्यू टर्म तो नहीं था, कोई डिजीज तो नहीं आ गई, क्योंकि लेटेस्ट बुक हमने अपलोड करी हुई है ना, तो लेटेस्ट बुक खुला भी रहता है। ये हमने क्या किया, पहले हमारे साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने पहले अपना एक लैपटॉप रिजर्व किया, है ना, क्योंकि ये चीजें देखो मोबाइल से तो होंगी नहीं, सिस्टम तो पूरा डेवलप करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब ये सोचो कि बिना टूल्स के आप सुपरमैन बन के मैनेज कर लोगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कितने लोग हैं मुझे पता है जो सिर्फ मोबाइल से मैनेज कर रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपको सुपर स्पीड लेने, रिसर्च में आपको लैपटॉप चाहिए, ठीक है ना, नहीं लैपटॉप ले सकते तो कम से कम वो जो आती है क्या बोलते हैं, टेबलेट ले लो, है ना, थोड़ा वाइड स्क्रीन जाए, आंखों को क्यों पेन देना, प्रिंट नहीं निकाल सकते, है ना, कोई चीज शेयर नहीं कर सकते, मतलब सारी लिमिटेशन अगर बना रखी है तो डे बाय डे तो आपको प्रॉब्लम होनी है। अब मुझे अगर मान लो माइकल जे ये गिलबर्ट की हमें रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट मान लो हमने अपलोड किया हुआ है, लेकिन मैं इसमें जानना चाहता हूँ इसमें क्या चीजें नहीं आई। बुक ओपन है, अब हम आधा घंटा लग गया, बुक ही कहाँ है, बुक पता ही नहीं लग रही कहाँ है। हमने इतना लाइन पढ़ा भी नहीं, देखो क्योंकि ऑनलाइन इतना पढ़ा नहीं जाएगा, तो हमने इस पे फोकस किया, डायग्राम पे। अभी देखो लिखा हुआ है इंटायर इंडिविजुअल, है ना, तो मुझे समझ में आ रही, क्योंकि मैंने लेक्चर देखा हुआ है, मैंने समझ में आ गई मुझे बात, ठीक है ना। ये डायग्राम में मैंने ये देख लिया, इसमें कुछ की टर्म देख रहा हूँ, हाँ मल्टीपोटेंट स्टेम आ गया, यूनिपोटेंट स्टेम आ गया, तो ये कैसे हुआ, अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, तो आई विल लुक फॉर द डिटेल्स, है ना। मार्फोलैक्सिस नई टर्म आ गई, मार्फोसिस आ गई, ये तो सीएसआर में आ सकता है, तो इस कारण से बुक कंसल्ट करना जल्दी जल्दी, इट्स काइंड ऑफ। और ये देखो ये मैंने पीडीएफ एडिटर मतलब किया हुआ है, इसमें क्या फायदा है कि मान लो हमें कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ नोट्स, है ना, मुझे मार्क करना है, मान लो ये लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अब यहाँ पे जाओगे तो देखोगे ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, कोई जरूरत नहीं आपको प्रिंट आउट निकालने की एवरी टाइम। तो टूल से तो देखो अपना डेवलप करना पड़ेगा। मार्कअप टेस्ट हमने ये भी मार्कोसिस का ये टर्म हमने हाईलाइट कर लिया, ठीक है, बात समझ गए। हमें मान लो यहाँ डायग्राम कट पेस्ट भी करना है, हमारी टेंशन क्या होता है कि जैसे मान लो हम खाना खा के आए या खाना बना के आए या चाय पी के आए, तो हमारे पास सब कुछ टूल ओपन है, सिलेबस देखो यहाँ पे ओपन है ना, देख रहे हो, और हमारे पास लास्ट 10 years के क्वेश्चन बैंक भी पड़े हैं, ठीक है, मैं इसको भी कंसल्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड मतलब टाइम कितना बचा लिया। अब तुम लोग क्या करोगे, पूरा ओपन करोगे, है ना, पूरा सर्च करोगे कहाँ पे रखा है, कैसे है ना, तो ये प्रॉब्लम है। तो एक तो होता है कि आपके पास टूल कितने, जितने ज्यादा मॉडर्न टूल होंगे देन दैट अब मुझे ऐड भी करनी होती है, जैसे वेबिनार का मैं ऐड ही बना रहा था आज, है ना, तो हमने कहा यार बना देने, तो कोई बच्चा आएगा नहीं, खराब ही देगा। ये देखो मैंने डायग्राम भी बनाया, डिजाइन भी बनाया, ठीक है, ये भी करना पड़ता है।
क्या करूं, फेसबुक पे डालना है। फिर रिसर्च पेपर देखो, ये मैं देख रहा था कि एंजाइम को मैंने किताब लिखी, एंजाइम को मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे टॉपिक भी मिला है, तो माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का 2017 का पेपर है। मैं ये देख रहा था कि इन्होंने कैसे मॉडिफाई की सारी चीजें। अब ये कितने पेज का होगा, कम से कम 40 पेज 50 पेज का है, ठीक है। ये पूरा पढ़ रहा था, फिर आपका भी टॉपिक मैं पढ़ना था, मतलब सब कुछ ओपन है, रेडी है, कोई भी कहीं भी टाइम नहीं लगना है मुझे। अब जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे मैंने सोचा कि यार कुछ कंसल्ट किया, तो मैंने एक नेचर का आर्टिकल भी निकाला, बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये मैं पढ़ भी रहा था, इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस ऑन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड इंटीग्रिन बायोलॉजी, ठीक है। ये 2011 का पेपर है, ये फुल पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है, ठीक है। तो इसमें कहानी की तरह लिखा हुआ है, मैं पूरा पढ़ते जा रहा था। इम्पैक्ट ऑफ हाइपोक्सिया, अगर वो कोई बड़ी चीज आ जाएगी तो आई कैन सॉल्व दिस। कहने का मतलब है कि यू शुड इनहैंस योर, है ना, नॉलेज पावर। नॉलेज पावर कैसे बढ़ाओगे? कई बार आपको अपने आप को एसेस करना पड़ेगा, राइट। जैसे सर ने जो पढ़ा, फिर बुक में क्या लिखा है, राइट, बुक भी कंसल्ट कर लिया आपने, ठीक है। थोड़ा टर्मिनोलॉजी देख ली, सर ने नहीं पढ़ाया, अच्छा नोट कर लेते, कोई बात नहीं, है ना। अब हाइड्रा में देखो ये टर्म मिल गया, मोटा मोटा ये लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, मुझे ये पता है, आपको भी पता होगा। हाइड्रा में लिखा हुआ है स्टेम सेल मेडिटेड रीजनरेशन मार्कलेक्स एपिमार्कस, इसी को वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं, क्योंकि किसी भी टीचर को इतना टाइम नहीं है कि वो जाके पूरा इतना डिटेल पढ़ेगा, वो यही 3 लाइन पढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद उसके दिमाग में क्या आएगा, उसके दिमाग से भी सोचो। अब ये देखो हाइड्रा को ये पूरा गैंग्लियन न्यूरॉन सेप्टोडर्म पूरा ये कह रहा है, तो कोई भी स्टूडेंट कहाँ नहीं आंसर कर पाएगा, यही नहीं आंसर कर पाएगा, है ना, कि ये हाइपोस्टोम से बन रहा है ये सारा, कि एंडोडर्म से बन रहा है, किससे बन रहा है ना, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एज ए बायोलॉजिस्ट यू हैव अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव योर टाइम यूजिंग द टूल्स तो पहले मैनेज करो। जो मुझे कई बार लगा कि आप लोगों के पास ना प्रॉपर टूल्स नहीं है, एम आई राइट और रॉन्ग, टेल मी। यस सर। पहले हमारे पास पूरी मैनेजमेंट नहीं है, टूल्स नहीं है जिससे कि हम अपनी हेल्प कर पाए। ओपन अप योर माइंड and discuss me constantly, and I'm requesting all of you, if you want to discuss, please open your mind, है ना। बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? तो एक तो पहला टूल इकट्ठा करो, चाहे सस्ता करो, चाहे पुराना करो, चाहे नया करो, आई डोंट नो, पर एक तो करना है रिलायबल चीज, जहां पे की सारी स्टोरेज हो। जैसे अगर मान लो अब देखो जुलाई से मैं फिर से क्लास लेने वाला, है ना, मैंने आपने देखा होगा मैंने अनाउंस कर दिया। अब क्या है, डीबीटी जीआरएफ का मैंने पूरा ये बना रखा है, हमारा सारा मटेरियल एक जगह है, यूनिट वाइज हमने यहाँ पे डाल रखा है, यूनिट 1 9 8 6। इसके पहले की जितने यूनिट कवर किए मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, इधर डेटा, ठीक है, इधर डेटा हमारे ट्रांसफर है, एक जगह डेटा है। अगर मान लो ये डीबीटी जीआरएफ, हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे अपने नोट्स, पीपीटी लेक्चर मेरे, है ना, तो ये सारा हमने डाला हुआ, ठीक है ना। समझिए बेटी, तो एक तो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे कोई चीज अगर ढूंढने में 1 घंटा लग जाएगा, है ना, बुक ढूंढो, ये ढूंढो, वो तो ओपन ही नहीं हो रहा, वो मिल ही नहीं रहा, टाइम पे फ्लैश करना चाहिए ना सारी चीजें। हमने देखो इसी में फ्रेंचाइजी प्रपोजल बनाया, प्लानर बनाया, है ना, सारा कुछ बनाया, एमसीक्यू फॉर्मेट बनाया, पूरा देखो ये चल रहा था, मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है। अभी मॉक टेस्ट पढ़ा कल, ये सारा मैंने बना लिया। इसमें से मैं देखता हूँ, जैसे एम्फीबियन साइट का मैंने प्रीमोर्डियल जॉनसन की बात नहीं करी, लेकिन मैंने क्वेश्चन डाले क्योंकि मुझे पता है, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। इस पर मैंने ऑर्गेनाइजेशन न्यू कोप सेंटर में सारा ये पढ़ा दिया है। तो कहने का मतलब अब मेरा भी तो काम है, ऐसा नहीं कि आपके काम कर रहे हैं। देखो सारा मॉक टेस्ट रेडी है, मुझे अपलोड करना है, बस रेडी रहेगा तभी तो अपलोड करूंगा। अब पढ़ के रेडी कर लिया मैंने कि कौन से क्वेश्चन, कहीं कई बार हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है कई बार,
मैं भूल गया सही मार्क करना, या यहाँ पे लिखना भूल गया एक्सप्लेनेशन। बात समझ लो, ये देखो सारा कुछ ओपन है, एवरीथिंग इज ओपन, बुक भी ओपन है, नोट्स भी ओपन है, पीपीटी भी है ना। एनी क्वेश्चन स्टिल लेफ्ट? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलो। शिवानी, रवीना, मनीष, मुकेश, प्रीति। तो दो तीन चीजें निकल के आई, समरी बता देता हूँ क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है डेली। एक तो जो भी गैप है, पहले तो टाइम प्रॉपरली प्लान करो। फर्स्ट क्या करोगे, बोलो। प्लानिंग सर। हाँ, पहले प्लानिंग करनी है, प्लानिंग विल सेव टाइम। दूसरा है कि टूल्स, अपने टूल्स को जरा एक्टिवेट कर लो, क्योंकि टूल्स ही आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना। अब आपको कोई फाइल खोलने में अगर सॉफ्ट कॉपी सारा कर रहे हो, हार्ड कॉपी कर रहे हो, तो फिर प्रिंट आउट लो सारा, है ना, इसको फाइल में लगाओ, बनाओ चैप्टर वाइज। अगर सॉफ्ट कॉपी में कर रहे हो तो एक लैपटॉप है एटलीस्ट खरीदो, बात वही होगी। 20,000 की चाहे जीरोक्स ले लो, 20,000 की चाहे लैपटॉप ले लो, है ना। आजकल तो लोन पे भी मिल जा रहा है लैपटॉप, है ना। 5,000 दो, लैपटॉप घर ले आओ, बाकी EMI पे पेमेंट कर दो। तो मनी यू कैन अर्न, जो भी मनी आप खर्च कर रहे हो दैट यू कैन अर्न, बट टाइम वंस गॉन, है ना, यू कैन नॉट गेट बाय। वो टाइम दोबारा आपकी लाइफ का नहीं पार्ट बनेगा, वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट ना हो टाइम, इसलिए आपको प्लानिंग करनी है, टूल्स का करना। थर्ड हमने क्या दिखा, थर्ड पॉइंट, प्लानिंग हो गई, टाइम मैनेजमेंट, है ना। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में जैसे टेस्ट है संडे को, नेक्स्ट संडे को, आपको प्लानिंग कहां से करनी है, इस मंडे से। क्योंकि मान लो बीच में तो 2-3 दिन खराब भी हो गए, तो स्टिल यू हैव द कंप्लीट बैकअप, है ना। और चौथा मैक्सिमम रिवीजन। मैक्स रिवीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग। फिर से प्लानिंग वाला आ गया, प्लानिंग आफ्टर, जैसे लेक्चर आपने लाइव लेक्चर को अटेंड करना है तो कसम खा लो, ठीक है, लाइव लेक्चर अटेंड कर लिया, फिर बुक का देख लो कि क्या क्या लिखा हुआ था, सेकेंड टाइम रिवीजन हो गया। थर्ड टाइम नेक्स्ट डे ही कर लो, क्योंकि फिर नया लेक्चर आ जाएगा तो फिर यही चीज रिपीट होगी, है ना। क्योंकि टाइम नहीं मिलना है, एवरी डे न्यू लेक्चर, एवरी डे न्यू लेक्चर, एवरी डे न्यू लेक्चर, न्यू डेटा, ठीक है। तो समझ में बहुत अच्छे से आया, लाइव लेक्चर की बहुत अच्छे से। अभी सो गए, सुबह फिर नया काम आ गया, ठीक है, रिवाइज किया नहीं, अगले संडे टेस्ट हो गया, गैप हो गया 6 दिन का, 6 दिन में ये सारा डेटा चला गया, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट डे वाली जो है, नेक्स्ट डे ही ऐसा टाइम है जो आपको बचा सकता है सारी चीज से। एग्री करते हो? क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलना, नेक्स्ट डे ही है टाइम, ठीक है ना। क्योंकि नेक्स्ट डे के बाद न्यू लेक्चर, तो जैसे न्यू लेक्चर आएगा फिर ये चीज करोगे, है ना। लाइव लेक्चर अटेंड किया, बुक्स थोड़ा रिवीजन कर लिया, कहाँ कहाँ पे है ये मटेरियल, सिलेबस देख लिया, कुछ क्वेश्चन देख लिए, तब सोए, है ना। अगर आप देखो तो लाइव लेक्चर के बाद का जो 1 आवर है, क्योंकि 11 तो मैं ही बचा देता हूँ आपका, 11, है ना, 1 घंटे आपके पास बचता है 12 बजे तक। तो इस 1 घंटे को किसी और काम में एंगेज नहीं करना। जैसे बहुत लोग खाना बनाएंगे या खाएंगे इस टाइम पे, वो प्लानिंग आपको 2 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में कर देती है। ये टाइम, इसको कहते हैं टाइम शिफ्ट। ये भी एक मैनेजमेंट का बड़ा सुंदर टूल है, बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है, इसको कहते हैं टाइम शिफ्ट। जो सबसे ज्यादा ब्रेन जहां पे एक्टिव है, वहां पे हम दूसरा काम एंगेज न करें, है ना, हम वही करें जो हमें करना है, ताकि हमारी अपनी फ्रस्ट्रेशन कम हो। तो हमें खुद को टाइम देना है। हमने यहाँ का जो काम है डेली का, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं खाना कभी भी 10 बजे के बाद तो मेरे पास टाइम नहीं होता ना, क्योंकि मुझे तो लेक्चर बनाना है, तैयार करना है, मॉक टेस्ट। आजकल मैं क्या करता हूँ, लेक्चर ओवर होने के बाद तुरंत मॉक टेस्ट बनाने बैठ जाता हूँ। क्यों? मुझे फ्रेशली याद रहता है सारा।
तो मैं ये टाइम पे बिल्कुल नहीं, मैं 2 से 5 का टाइम देता हूँ खाना बनाने में और सारी चीजें करने में जो भी खाने से रिलेटेड है, क्योंकि शाम का खाना तो चाहिए ही। जैसे चावल बनाना, दाल बनाना, सारी प्लानिंग मॉर्निंग में कर देता हूँ, ताकि अगर मार्केट जाऊं तो वो सारे सामान मैं टाइम से अरेंज करूँ। ये नहीं कि 2 बजे में बनाने चला, फिर मार्केट भागा, फिर 6 बजे आया तो टाइम तो वेस्ट हो गया, है ना। इसको कहते हैं टाइम सेफ्टी। ये 2 से 5 का ब्लॉक कर दिया मैंने, 12 से 1 इधर ब्लॉक कर दिया, ठीक है। 11 बजे खाना खा लिया, 11 बजे हमने खाना खा लिया था, 11 से 1 मुझे सोने को मिल गया, ठीक है ना। और फिर 1 से 2 के बीच में मैं फिर से रिसर्च पेपर इकट्ठा करूंगा, है। फिर मेरे पास इधर 3 घंटे में दे रहा हूं, तो इसको मैंने यहाँ से 2 घंटे और चुरा लिए। मैं ये सारा काम मैंने प्लान कर लिया 1 घंटे में, 4 से 5। तो ये रिसर्च पेपर को जो 1 घंटे टाइम मिला था, ये 3 आवर्स पर डे मिलता है, ठीक है। तो चोरी करना पड़ता है, इसको कहते हैं चोरी, टाइम की चोरी करनी पड़ती है। कहां से बचा सकते हो टाइम, क्योंकि टाइम अगर बचेगा नहीं फिर तो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो गई, उसका कोई इलाज नहीं है फिर। और कोई आपकी बता दो दुनिया में हेल्प नहीं कर सकता, नो वन कैन हेल्प यू, कितना भी आपका सगा हो, नो वन कैन हेल्प यू। प्रीति, टेल मी दिस इज ट्रू और नॉट, ठीक है ना। बोलो, फिर बोलना है तो, मैं तो थक गया बोल बोल के। जी सर। हाँ, बोलो। मैं प्रीति से मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसका मेंटल लेवल पता है। तो अगर प्रीति हैप्पी है देन इम्प्लीमेंटेशन तो देखो करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि दवाई आपने सुन लिया कि एंटीबायोटिक बहुत अच्छी है ना, सुनने से नहीं काम होगा, वो एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। हाँ, सर समझ रहे हो? समझ गए ना सारी बात। जी तो जी सर। जो टाइम के जो गैप हो रहा है ना आपके पास, मैं समझ रहा हूँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे पता है ना। तो वो टाइम चुराना पड़ेगा आपको, आप देखो कहां से चुरा सकते हो। इस पे मैंने बहुत काम किया, मुझे बहुत टाइम लगा ये टाइम चुराने की टेक्निक सीखने में, मुझे काफी साल लगे, क्योंकि मुझे कोई हेल्प नहीं करता था और मैं अकेले ही फ्रस्ट्रेट होके खुद के ऊपर गुस्सा निकालता, ठीक है ना। तो उससे मेरा ही नुकसान होता था, मेरा ब्रेन लेवल बहुत ही वीक हो गया था, मैं भूलने लगा था। फिर मैंने ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना शुरू किया। ये भी लो बेटा, दवा बता रहा हूँ, ये भी थोड़ी हेल्प करेगी। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, इसकी ना कैप्सूल आती है, मार्केट में मंगा लो, ये जरूर मंगाओ सारे लोग, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा वरी करते हैं ना, तो जो ये ब्रेन वाले एसेंशियल अमीनो एसिड है वो डिप्लीट कर जाते हैं। तो समटाइम ये भी होता है कि इनके डिप्लेशन से भी हमारी प्रॉब्लम होती है कि हमने जो सुना हुआ है वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट टाइम, है ना। तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि क्या है। तो एक तो ये भी लोकेश को काफी, मैं पक्का ये मंगाऊंगी। हाँ लोकेश को काफी, हाँ लोकेश को काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। लोकेश शेयर योर वाइट। ये सर मैं जो है ये खरीदा था सर, उस टाइम जब फर्स्ट टाइम आप एंजाइम पढ़ा रहे थे तो बताए थे वाली चीज, तो इससे फायदा मिली है। मतलब कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल करके आता है 200-250 आसपास का। हाँ, अच्छा, MRP है। ओके, तो कहीं भी मेडिकल में मिल जाएगा, ले अरे लीजिएगा। कॉड लिवर ऑयल ले लो या फ्लेक्स सीड ऑयल ले लो, है ना। सर ये ओमेगा 3 करके बोलेंगे ना कि ओमेगा 3 का कैप्सूल दे दो। अगर ओमेगा 3, ओमेगा 6, 9 बोलोगे तो ये कैडिला का आता है। हाँ। ये 1000 का आएगा, 120 टेबलेट, हाँ हाँ, है ना। लेकिन अगर सस्ता चाहिए, थोड़ा सा फाइनेंस बचाना है, तो सेम चीज है कॉड लिवर ऑयल में या फ्लेक्सीड ऑयल में। हाँ, ये मिलेगा 450 का 60 टेबलेट, ठीक है ना। ये 60 वाला ज्यादा फायदेमंद रहता है। मैं तो हेल्थ कार्ड से मंगाता हूँ, है ना, ऑनलाइन। अभी पता नहीं ऑनलाइन डिलीवरी शायद शुरू भी होगी है, या अगर नियर बाई शॉपकीपर है तो वो मुझे अच्छा रेट दे देता है। रेट तो मुझे पता है 450-500 के बीच में ही देगा। हेल्थ कार्ड वालों ने बल्कि अभी बढ़ा दिया रेट, 650 कर दिया, तो मैंने हेल्थ कार्ड से खरीदना ही बंद कर दिया।
मैंने 450 के लेना, क्योंकि मैं बहुत बल्क में लेता हूँ। 120 टेबलेट मुझे रहना ही है, और मैं सुबह शाम दोनों टाइम लेता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं ना लूं 3 दिन बाद मुझे तुरंत प्रॉब्लम होती है, फिर मेरा डिप्रेशन लेवल बढ़ता है। इससे मेरा हैप्पीनेस लेवल काफी बढ़ा, टाइम मैनेजमेंट बढ़ा। अगर मैं कम भी सोता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता खास। मेरा विजन बढ़ा, आईज ना मतलब काफी स्टेयर करता हूँ मैं स्क्रीन को, तो लॉट ऑफ पेन इज देयर, तो आंखों से पानी गिरना शुरू हो गया था, विजन, नजर कमजोर हो गई थी, चश्मे लग गए थे, वो सारे हट गए। तो डाइट पे तो देखो काम करना पड़ेगा ना, खाने में क्या खाना, नाश्ते, ये भी प्लान करना पड़ता है ना। मुझे चाय चाहिए होती है, अभी देखो गर्मी आ गई ना, तो जो मैंने जाड़े में चाय बनाई थी वो रेसिपी पूरी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि पिछले उधर 2-3 दिन में बहुत बीमार रहा, लेकिन मैं आपको क्लास लेता रहा, आपको पता नहीं लगने दिया कि मैं बहुत बीमार था। तो ये होता है, अपने आप स्ट्रेस लेना और काम करते रहना, ताकि लोगों को पता भी नहीं लगे कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हो। वो इसलिए अच्छा हो पाता है बिकॉज यू आर गिविंग टाइम, सफिशिएंट टाइम टू एवरीवन, है ना। सारे लोग खुश रहते हैं, है ना। टाइम अब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि स्लीपिंग टाइम क्या है एंड अवेकनिंग टाइम क्या है, और 8 घंटे आप कैसे पूरा कर सकते हो। 8 घंटे की स्लीपिंग में पूरा कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 8 घंटे नहीं सोता, क्योंकि 8 घंटे से कम सोऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं कौन सा कैप्सूल खरीदूं ये बता दीजिए मुझे। मैं खरीदूं, खाऊंगी, मुझे बहुत जरूरत है। नहीं, तुम कॉड लिवर ऑयल मंगा लो, ये बहुत ही जबरदस्त है। ये फ्लैक्सीड ऑयल उनके लिए होता है जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं मीट अंडा कुछ भी नहीं खाता, मैं कॉड लिवर ऑयल को अवॉइड ही करता हूँ। कैडिला जो देता है ये कॉड लिवर ऑयल ही देता है। कॉड लिवर ऑयल फिश ऑयल होता है, इसमें बहुत ही प्योर फॉर्म में होता है ओमेगा 3 ओमेगा 6 में। लेकिन बता दूं ये जो होता है कॉड लिवर ऑयल में ये ओमेगा 3 ज्यादा होता है, ओमेगा 9 तो बिल्कुल नहीं होता है। फ्लैक्सीड ऑयल में ओमेगा 6 ओमेगा 9, तो आप दोनों ले सकते हो, एक सुबह ले लो एक शाम। तीनों का कैडिला ने क्या किया कि मिला दिया, कॉड लिवर ऑयल और फ्लैक्सीड ऑयल को मिला के, है ना, आराम से मिला के कैप्सूल बनाया, और कोई टेक्नोलॉजी नहीं की। तो आप अलग अलग खरीद ही लो कैप्सूल, है ना, रेट सेम ही है दोनों के, कोई प्राइस में डिफरेंस नहीं। हाँ, ये सब मैं खरीद लूंगी। कॉड लिवर ऑयल बल्कि आपको सस्ता पड़ेगा, फ्लैक्सीड ऑयल थोड़ा महंगा पड़ेगा, 100 रुपए का डिफरेंस आएगा। 350 मिल जाएगा कॉड लिवर ऑयल, 450 रुपए पड़ जाएगा फ्लैक्सीड ऑयल। वेजिटेरियन के नाम पे थोड़ा महंगा बेचते हैं, लेकिन हाँ कंपोजिशन भी अलग है। ऐसा नहीं कि इसमें ओमेगा 6 ओमेगा 9 है ही नहीं। इसमें बंगाली लोगों को देखो दिमाग कितना तेज चलता है, देखा तुमने, नोबेल laureate में उन्हीं का नाम है ना, सारे रिसर्च में उनका नाम, जितने आरबीआई गवर्नर बंगाली है ना। उसका कारण कॉड लिवर है, उनके बच्चे मच्छी भात खाते हैं ना, उनके जीन में ये वो कॉड लिवर, उनका ब्रेन बहुत एक्टिवेटेड होता है। हमारे यहाँ क्या और सारे इंडियन कल्चर में, खास करके हिंदूज में तो बड़ी प्रॉब्लम है, वो तो खाते ही नहीं कोई एसेंशियल अमीनो एसिड, तो वो ब्लॉकेज बना रहता है उनको। जब बच्चा बॉर्न होता है तो वो डेफिशिएंट होता है, ऑलरेडी न्यूरॉन से एक्टिवेटिंग नहीं हो रही है, तो फिर बाद में वो, अब तो चलो डॉक्टर्स की निगरानी में सारा हो रहा है, तो ठीक है, अदरवाइज तो बड़ी प्रॉब्लम। तो ये चीज करो, ये बहुत फायदा देने वाला है। टाइम मैनेजमेंट करो और सोचते हमेशा रहो। अपनी कमियों को ना दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, गुरु से बता सकते हो, है ना, बट नॉट टू शेयर टू अदर पीपल। एंड ऑलवेज शेयर योर हैप्पीनेस फैक्टर शेयर करो, क्योंकि जिसको तुम मल्टीप्लाई करना चाहते हो वो चीज शेयर करो, नहीं समझे। हमारी एक पर्सनल जो कहते हैं ना व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, वो भी बड़ा मैटर करती है। जैसे मैं बताऊं, मेरा ये था कि पर्सनली आई वाज बहुत डिप्रेशन में रहता था, बहुत ही ज्यादा। फिर मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था, और सब मुझसे गुस्सा हो जाते थे, सारे दुखी हो जाते थे। मैं सोचता था क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आता था। तो मैंने देखा कि एक तो मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, मैं खुद से दुखी हूँ। तो जब मैं दुखी रहूंगा तो वही ट्रांसलेट होती है, मैं सबको बता देता था, है ना, कि अरे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको बड़ा मजा आता था दूसरों को ना। आपका दुख सुन के बहुत मजा आता है, अच्छा आप फेल हो रहे हो, अच्छा वो मुंह बनाएगा आपको सहानुभूति देने के लिए कि अरे यार बड़ा वो आपके साथ कीजिए, लेकिन मजे ले रहा है आपके, है ना। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया इससे, मैंने ओवरकम किया। अभी मैंने सारी हैबिट चेंज की। मैं क्या शेयर करता हूँ, हैप्पीनेस। जो वीकनेस है
उसको मैं अपने बहुत ही खास लोगों से उसका सोल्यूशन देता हूँ। सोल्यूशन मिल गया, उसको मेंटेन करता हूँ। ऐसा नहीं कि अब लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया, ऐसे ही समझ लो, लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन फायदा क्या हुआ अगर मुझे वो एंड ऑफ द एग्जामिनेशन उसको कोई भी आंसर हमने मतलब अच्छे से नहीं किया, फायदा क्या हुआ उस लेक्चर का, बताओ मुझे, है ना? तो हमने क्या गैप किया, हमारी कमी क्या रही, हमारी लिमिटेशन क्या रही, हमारे सामने एक चैलेंज था कि उसको रिवीजन करना। बट वर्कलोड हमने इतना ले लिया, टाइम मैनेजमेंट किया नहीं, टाइम शिफ्ट किया नहीं, प्रैक्टिस किया नहीं, तो काम हो गया खराब। तो वी आर आवर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स। हमारी फेल्योर भी जो होती है ना, फेल्योर एंड सक्सेस में कभी भी सिलेबस आगे नहीं आती है, कितना लंबा सिलेबस है या हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हैबिट बहुत काउंट करती है। अब जैसे प्रीति तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, लोकेश तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, तुमने जब से मेरे ट्यूटोरियल्स को ज्वाइन किया, व्हाट इज योर पर्सनल हैप्पीनेस लेवल? बस इतना बता। लर्निंग लेवल की तो मैं एसेस कर लूंगा, बट पर्सनल जो लेवल है हैप्पीनेस का, वो बढ़ा कि घटा, ये बताओ। बढ़ा है ऐसा? बढ़ा है ना जी। ये इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस फैक्टर, ठीक ना? अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो, फील करते हो डेली, नहीं यार बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही, पॉजिटिव चीजें हो रही है, राइट, तो आप उसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हो। तो आपको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें निगेटिव है हम उसी को पकड़ के मल्टीप्लाई करते हैं, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना। बैक्टीरिया है, कोरोना वायरस है, तो उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे नहीं करवाएंगे, उसको उगाएंगे ना, उसका तो इलाज करेंगे ना, है ना प्रीति? बताओ, am I right or not? जो निगेटिव चीजें उसको मल्टीप्लाई नहीं करवाना भाई, उसको मैनेज करना, उसको मल्टीप्लाई नहीं, उसको मैनेज करना, उसको मैनेज करके सॉर्ट आउट करना। इसी तरह से लाइफ CSIR का गोल है, CSIR को क्या करना है, निकालना है। निकालने में हमें खुद दिख रहा है कि हमें 13 यूनिट्स में से क्वेश्चन मिलने हैं, राइट। हमारा रिवीजन का लेवल क्या है, वो जो रिवीजन का लेवल है वही हैप्पीनेस फैक्टर को बढ़ाएगा। जितना कम रिवाइज करोगे उतना तुम्हारा वो हैप्पीनेस का लेवल बढ़ेगा, और वही चीज आपको दिखाई देगी जब मॉक टेस्ट आप करते हो। मॉक टेस्ट करते हो तो ये तैयार होके जाओ कि जैसे हम रियल एग्जाम में जा रहे हैं, और ये हमारा JRF का सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो 3 टारगेट लेके जाओ, मिनिमम मिस्टेक करनी है, सबसे ज्यादा कम नेगेटिव मार्किंग करनी है, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे। कुछ तो कमिटमेंट करके जाओ ना अपने से। मान लो 50 क्वेश्चन है, आपने 20 ही क्वेश्चन किए, इसको डिप्रेशन की क्या बात है, 20 के 20 तो सही है। सबसे हैप्पीनेस का पॉजिटिव पॉइंट पकड़ो, है ना यार। 20 किए लेकिन 20 सॉलिड है, तो वो बूस्टअप हुआ हमारे कॉन्फिडेंस। हमने 30 किए लेकिन 10 गलत निकल गए, है ना, वो प्रॉब्लम हो गई। जितना मार्क्स 20 में आना था उससे कम मार्क्स आ गए 30 करने के बाद। बात समझ लो। यस सर। तो कहने का मतलब है कि एक तो हर चीज में प्लानिंग करो, चाहे एग्जाम देने जा रहे हो प्लानिंग करो, खाना बनाने जा रहे हो प्लानिंग करो, ठीक है, पढ़ने जा रहे हो प्लानिंग करो। टूल नहीं है तो टूल के लिए पूरी जान लगा दो। जैसे मैं बताऊं, पिछली बार मैं लेक्चर ले रहा था, मैं जिस मकान में था बहुत ही गर्मी होती थी, और उस समय क्या हुआ था कि किसी वजह से हम जिस यूनिवर्सिटी में थे वहां पे यूनिवर्सिटी का कोर्स ही बंद हो गया था, तो जॉब से रिजाइन कर दिया था। तो मैं यही CSR पढ़ाता था, मेरे पास फाइनेंस की बहुत ही प्रॉब्लम थी, बट मैंने उसको माइंड में हावी नहीं होने दिया, मैं पढ़ाता ही रहा, काम करता रहा, ठीक है ना। तो AC लेना था, ठीक है ना, AC लेना था क्योंकि गर्मी बहुत होती थी। AC था 36,000 का, तुरंत बजाज फाइनेंस किया हमने, हो गया मैनेज फटाक से। तो देखो कभी कभी जो लिमिटेशन होती है उसको ओवरकम करना भी हैप्पीनेस फैक्टर या सक्सेस फैक्टर को बढ़ाता है। अगर हम उसको लेके चलेंगे, मान लो तुमने जैसे हमारे कहने से क्लास में ज्वाइन किया, प्रीति तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे कहने से तुमने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया, मेरे कहने से तुमने गूगल क्लास का किया, तुम उसके लिए भी तैयार नहीं थे, तुम याद करो, गूगल क्लास लेने के लिए तुम तैयार नहीं थे, तुम सिर्फ मॉक टेस्ट लेने के लिए तैयार थे, है ना। यस सर। तो कहने का मतलब जब हम माइंड को लिमिट कर देते हैं फिर हमारी सक्सेस में वो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो कहीं भी एक
तो कई चीजें हैं जहां हमें सुननी चाहिए। जैसे डॉक्टर का है, अगर मान लो डॉक्टर कह रहा है कि ये डिजीज है और हमें, है ना, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ठीक है, वो काम करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, उसमें शॉर्टकट करते हैं, फिर जान से हाथ धोते हैं। तो इसी तरह से लाइफ में दूसरों को भी वैल्यू देना चाहिए, ओपिनियन सुनना चाहिए। हाँ, कैसे मैनेज करना है, दैट्स आवर पार्ट। अगर किसी ने मेरे से कहा कि यार आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, थोड़ा सा 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाने की आदत डालना, तो एक लिमिटेशन उसने बता दी, तो उस पर मुझे काम करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा, है ना। और कोई भी काम करने से पहले हमने ये रूल बताया, प्लानिंग, टूल, टाइम मैनेजमेंट एंड मैक्सिमम रिवीजन। ये 4 चीजें कर लोगे, ऑलवेज यू विल गेट द सक्सेस, ठीक है ना। प्लानिंग इन एवरी वर्क, कुछ भी करो, नोट बनाओ, मेमोरी मैप बनाओ, प्लानिंग, ठीक है। खाना बना रहे हो, मान लो तुमको कह दिया गया कि आज, है ना, पालक पनीर की सब्जी बनानी है। सोचो प्रीति, कितना टाइम लगता है इसमें, है ना। अब तुमने अगर उनको कमिट कर दिया कि नहीं आज ही बनाना है, अब हमको पता है कि कल हमारा टेस्ट है, आज अगर पालक पनीर बनाएंगे तो कल पालक पनीर वहां भी बन जाएगा मॉक टेस्ट में, है ना। तो सबको खा के तो मजा आएगा, लेकिन हमारा क्या, हमारी तो खुशी चली गई ना। तो हमने पहले प्लानिंग कर लिया कि नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, तो हमने उसमें से पालक निकाल दिया, अब पनीर की सब्जी बना दी है ना हो गई शॉर्टकट तरीके। उससे भी बड़ा अच्छा तरीका है, नहीं बना सकते, देखा टाइम कैलकुलेट किया, अरे छोड़ो ऑनलाइन ऑर्डर करो, सब लोग खाना खाते। तो टाइम हमने क्या लाइफ में सीखा, हमने पैसे बचाने की कभी नहीं सोची। मैं हमेशा टाइम को वैल्यू देता हूँ, मैं टाइम बचाता हूँ, क्योंकि टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो सब कुछ कन्वर्ट कर दे। एक बार आपको जेआरएफ लग गया, आपकी 36,000-40,000 सैलरी आएगी पर मंथ, है ना, वो भी 3 साल से 5 साल, वो क्यों नहीं सोचते हो, वो तो पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं। तो अगर आज तुम लैपटॉप मैनेज करते हो, सब कुछ मैनेज करते हो, सारा रिटर्न मिल जाएगा। तो दैट इज लेवल ऑफ थिंकिंग कि एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट। जैसे ये वर्ड आया इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न, इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिटर्न मिलती है, डबल या ट्रिपल। तब आपका गोल जो है बढ़ गया, आपका इंकरेजमेंट बढ़ गया, पॉजिटिविटी बढ़ गई। जैसे आपने सोचा अरे मैंने खर्चा कर दिया, हाँ यार खर्चा कर दिया, 3,000 निकल गया, भट सर को दे दिया, बस वो 3,000 आपकी जान ले लेगा 30 दिन में जोड़ते रहोगे, हमेशा जोड़ते घटाते रहोगे, और हमेशा घटता रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो आपके सोचने का तरीका भी कई बार ना पॉजिटिविटी देता है आपको काफी। तो हमेशा बी पॉजिटिव तरीका है कि उसका रिटर्न सोचो, क्या मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा। प्लानिंग में यही हम करते हैं। प्लानिंग में यार कल हमारा टेस्ट है, सबसे अर्जेंट टास्क सोचते हैं, क्या है सबसे अर्जेंट टास्क, कल टेस्ट है, अरे आज पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक क्या है, अच्छा ये टॉपिक, कौन सी बुक पहले ही सिलेक्ट कर रखी है ना, हमने हमारी हैबिट में है, हमने उसको मार्क कर रखा है आराम से, है ना, फिगर देख रखे हैं, अरे कहाँ जाएगा, उसी में से आएगा, है कि नहीं। अब इतना कॉन्फिडेंस तो आइए कि उसी में से आएगा। थोड़ा टेस्ट के पहले जैसे 12 बजे तक सो जाते हैं, पहले का टेस्ट है तो आज 3-4 बजे सुबह तक पढ़ लेंगे, क्योंकि सुबह तो कोई पढ़ने देगा नहीं, मुझे पता है ना। तो थोड़ा ज्यादा नाइट में शिफ्ट लगा ली, खाना थोड़ा कम खाया, लोगों से थोड़ा दूरी बना ली, सोशल डिस्टेंसिंग कर ली रात में हो गया काम, हो गई टेस्ट की तैयारी। अब टेस्ट में बढ़िया वंडरफुल हो गया तो पूरा हफ्ता आपका सही जाएगा, अरे यार हमने तो कर लिया, है ना, इतने बिजी टाइम में भी हमने कर लिया, तो एक विनर की फीलिंग आएगी, वो फीलिंग आपको चेंज कर देगी। ठीक है, पर्सनल हैबिट काउंट्स अ लॉट, पर्सनल थिंकिंग काउंट्स अ लॉट। कहीं भी प्रॉब्लम आती है, हमारे भी एक गुरु जी है, मैं उनको फोन लगाता हूँ, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत 1 सेकंड में सोल्यूशन फटाफट बताते हैं। जिसको मैं सॉल्व करने की हिम्मत नहीं रखता, ऐसे चुटकी बजा के फटाफट बताते हैं। इसी तरह आपके लाइफ में भी गाइडेंस वाला कोई होना चाहिए, परफेक्ट, जिसको ट्रस्ट करते हो, बातें करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन दो, जैसे आज हम बैठ के बातें कर रहे हैं। क्या दिक्कत है, क्या चला गया 2 घंटे में। अगर मैं ये सोचूं कि मैंने तो लेक्चर 2 बनाए थे, दिए ही नहीं, है ना, मेरा तो खराब हो गया, खराब कुछ नहीं हुआ,
मैं लेक्चर देता जा रहा हूँ, कोई रिजल्ट ही ना आए, फायदा क्या? अगर मेरी इस 2 घंटे से सबका CSAR क्लियर हो जाए ओमेगा 3 खाने से है ना? तो यू कैन थिंक कि एवरीथिंग यू कैन कन्वर्ट देम इनटू द पॉजिटिव, नेगेटिव तो हर चीज है, बात समझ रहे हो? नेगेटिव तो हर चीज है। आप जिस कमरे में खड़े हो वहां बिजली लग रही है ना, टाइम लग रहा है, पैसे लग रहे हैं, किराया लग रहा है, खाना का, ये सब सोचने की बात थोड़ी है। उसका रिटर्न कैसे आना है वो सोचना है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। समटाइम ए वेरी स्मॉल वर्ड कैन चेंज योर लाइफ, स्मॉल हैबिट कैन चेंज योर लाइफ। अब मैं सुबह 4 बजे उठा, रिकॉर्डिंग की 3 घंटे की होती है, पूरी 3 वीडियोस बनते हैं उसको, फिर मैं आजकल एक्सटर्नल माइक से भी रिकॉर्डिंग करता हूँ ऑडियो इंप्रूव करने के लिए, वो भी मिक्सिंग करनी होती है, वो भी देखना पड़ता है। तो एक मेरा बहुत ही हाई लेवल का टास्क बन जाता है। पहले मैं क्या करता था, डायरेक्टली अपलोड कर देता था, बाहर में जाओ, ऑडियो मुझे नहीं देखना है क्या है क्वालिटी। तो टाइम मेरा बचा, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिली ना, लेकिन मुझे लगा यार स्टूडेंट साथ जस्टिस है ना, वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूं। तो कभी कभी जब हम दूसरे के लिए, ह्यूमन इज सोशल एनिमल ना, जब हम दूसरे के लिए डेडिकेटेड होते हैं तब हमें काम करके बहुत अच्छा लगता है। तो वो अच्छाई हमको लेनी है, वो हैप्पीनेस हमको लेनी है। इंक्रीज योर हैप्पीनेस लेवल एट द एंड ऑफ द लेक्चर। आज मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ कुछ भी जाके टेस्ट की तैयारी करो, ठीक है? और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। तो मंडे को टेस्ट होगा ना? नहीं भैया, संडे को होना 3 से 5, मंडे को दूसरा टेस्ट होना है। जो मंडे को टेस्ट होना है, मंडे या ट्यूसडे, मंडे को नहीं होगा, ट्यूसडे को होगा। तो ट्यूसडे में टेस्ट होना है, वो कल टेस्ट होगा जो पढ़ाया था वो ना, ABC ऑफ फ्लावरिंग, याद है? अच्छा अच्छा, वो प्लांट वाला ना सर? हाँ, ABC फ्लावरिंग कहाँ के है? अलावा वो प्लांट डेवलपमेंट का ना? हाँ, प्लांट डेवलपमेंट का पूरा है, पूरा प्लांट डेवलपमेंट पूरा, पूरे सर इसमें से, और किसमें से? सर जो अभी पढ़ाए हैं इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे या फिर उसी में से? नहीं, इसमें से नहीं आएंगे, इसमें से ट्यूसडे को आएंगे, क्योंकि मंडे को मैं ये कवर करूंगा पहले। हाँ ये सर, अभी एनिमल का नहीं सर। नहीं, एनिमल का अभी नहीं हो रहा है, अभी तो ट्यूसडे वेडनेसडे तक जाएगा जी। अभी काफी बैकअप बना दिया। आप अगर लेक्चर ही खाली रिवाइज कर लेते हो ना, तो आपके जो माइंड में मैंने बनाया है कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त है कि आप पूरी एम्ब्रियोलॉजी की बुक भी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ ना। इसीलिए मैंने एक पूरी लाइफ साइकिल आज सोचा था कि आज मैं कवर करूंगा, कोई बात नहीं, मंडे कवर कर दूंगा, है ना? तो सेम चीजें हमें पढ़ानी है। इसी में भी कैसे फर्टिलाइजेशन होता है ना, स्पर्म कैसे आते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं, है ना? या इसमें हर्माफ्रोडाइट है, सी एलिगांस, तो इसी में देखो स्पर्म भी है, इसी में ओवा भी है। तो क्वेश्चन होता है यार इसी में स्पर्म कैसे है और डिफरेंशिएट कैसे किया, है ना?